मैडम आप फोन से ही कर रहे हो ना ज्वाइन? तो वो ऐप है ना? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट आपके पास वो ऐप है ना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का? मतलब वो डिलीट वगैरह तो नहीं हुआ है ना ऐप? चलो ठीक है, वील स्टार्ट एनीवे. So as I told you, these recording started. Let me see, sir. I had switched on default. Let me check. It is recording. Yes. Yeah. Okay. So these numbers, as I told you, they work like universal laws, like nakshatras. They are there in the universe. Okay. And 8 billion is the world population. Okay. And which is the widely preached or widely practicing religion in the world? Christianity. Yes. So I'm not getting into Hindu, Christian, that all. Okay, I am a pure Hindu. I have Hindu beliefs. Okay, no doubt about it. But something that is working like universal law, there has to be substance to it. And as an occultist, as a somebody who's interested in occult, I got intrigued to these numbers and I found a lot of meaning in these numbers. So sometimes we should go beyond religion and know the secrets of the universe. Okay. So does anybody know that द ओरिजिनल बाइबल वो कौन से लैंग्वेज में है? कौन से लैंग्वेज में लिखा है बाइबल टेक्स्ट? I think Hebrew. I think Jews. No, the राइट Hebrew. राइट राइट. So the entire Bible is written in Hebrew language, and in Hebrew text, like there are alphabets. Okay, there are 22 alphabets. Every alphabet would have some number code. Okay, like yeah, A B C D, like that. They will have that alaf and their own letters, and in front of every letter there will be one number. There will be a numeric value of every number, and hence every name or a spelling would have some numeric value. Are you understanding my point? Every letter has a alpha numeric value. Combination of alphabets is words or spellings or names. They will have one definite numeric value. And these are known as evangelical numbers or evangelical codes. And for some people who are new or who don't know, that Christianity works on Trinity principle. Can somebody explain what is Trinity principle? Not sure about Christianity, but they have something similar to our Brahma, Vishnu, Maheshwara. Same, they have some concept where Yes. three. Yes, like we have Brahma, Vishnu, Mahesh, they have like Father, Son, and Holy Spirit. Correct. Yes, this I got to know in this pranic healing. I did a basic course there. I got. Correct. So Father means what they are referring to, the God Almighty. Okay. And who is the Son of God? When they say Son of God, whom are they referring to? Jesus, to the Jesus. Yes. Jesus Christ is referred to as Son of God. And the Holy Spirit is the medium between Father and the Son. So Father, Son, and the Holy Spirit. Okay, that is their main this thing. So if you get a chance, any one of you, on Netflix, there's entire movie or documentary. Not documentary, it's a movie. It's a fiction. It's a like movie. Like the name of the movie is The Jesus Code. Okay. If you get, it is in episodes. If you get a chance, do
watch that. Lot of secrets are revealed in that. And the person behind me अभी कैसे ज्वाइन हो गया नीता जी? है नीता जी आप? हाँ, म्यूट पे हो, म्यूट पे हो. बच्चों से ठीक है. करवाया अभी. ओके ओके ओके. सो अभी जो मेरे पीछे, हाँ ठीक है, अभी जो मेरे, बैठ जाइए बैठ जाइए, मेरे को थोड़ा आपका ये नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू है शायद आपके उधर. बैठ जाओ. तो मेरे पीछे एक पेंटिंग है बैकग्राउंड में. कैन यू सी दैट? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir, visible. Yes, sir. Yes. सो एनी आइडिया कि वो किसका पेंटिंग है? वैसे अंदर से पता है This. लेकिन मुंह पे नहीं. Leonardo. डिड यू से समथिंग शोभित जी? No, no. I mean, is it? It looks like that Adam and Eve. This one, no, the first human. No, Adam. no, it is Not actually that. Saint John the Baptist. Oh, okay, okay. Yeah, that. Okay, so in Christianity, they will have a tradition of baptism. Okay. So, who was Saint John the Baptist? He was the one to baptize Jesus Christ. Okay, they have this ceremony, है ना? नीता जी अगर हो सके तो आप एक बार वीडियो बंद करके चालू करो. आपका ऐसे फ्रोजन फेस आ रहा है इस पे. अगर हो सके तो वीडियो ऑन करके ऑफ करो, ऑफ करके ऑन करो. तो हाँ, अभी ऑन कर लो भले. तो who was Saint John the Baptist? He was the one who baptized Jesus Christ. Baptism, you know, oh, they will immerse the face in the water, है ना, and they will बैप्टिज्म. किसी ने देखा है कि किसी ने? क्रिश्चियन लोग प्रैक्टिस करते हैं, पानी में फेस को डुबोया जाता है और एक सेलिब्रेटेड एज अ न्यू बर्थ. ठीक है. तो सेंट जॉन के लिए बोला जाता है ही वॉज द वन हु केम टू लाइट. लाइट होम? जीसस क्राइस्ट. ठीक है. जीसस क्राइस्ट को जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में, हम हिंदू में बोलते दीक्षा, दीक्षा देना या वो करना, है ना. सो सेंट जॉन द बैप्टिस्ट वाज द वन हु बैप्टाइज्ड जीसस क्राइस्ट. एंड normally in the paintings, Saint John the Baptist will be shown as a very old man, saint like figure, and wearing rugged clothes. Okay. But here you will see, in contrary, this आपने शायद कहा कि this is the painting by Leonardo da Vinci. ठीक है. The famous sculptor, artist, engineer, scientist all in one. तो उसने क्या किया है, कॉन्ट्राडिक्टरी में सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को एक जवान, है ना, नौजवान के रूप में दिखाया है. और जैसे मैंने बताया कि उसके लिए क्या बोला जाता है, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के लिए ही वॉज द वन हु केम टू लाइट. ठीक है. तो इसमें आप पेंटिंग में देख सकते हो कि पूरा जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, पर जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन फिगर है इसमें, दैट इज फुल लिट, इन फुल लाइट. ठीक है. मैं बाद में भले इसका ग्रुप में पिक्चर डालूंगा और आप देख सकते हैं. अगर मैं हट जाऊं तो ही इज शोन विथ लेपर्ड पेल्ट. इसमें कॉन्सेप्ट चलता है गॉड एंड बीस्ट. इसमें बाइबल का जो क्रिश्चियन का स्टोरी है बाइबल का, उसमें एक बीस्ट, बीस्ट मतलब इवल फोर्सेस को दिखाया जाता है. जैसे हम में देवता और असुर होता है, वैसे इनमें बीस्ट, इवल फोर्सेस को दिखाया जाता है. तो उसका जो सिंबल है लेपर्ड, लेपर्ड इज अ बीस्ट. तो उसने बीस्ट का कपड़ा, लेपर्ड का कपड़ा, मींस ही इज सराउंडेड बाय नेगेटिविटी, बट ही इज स्टिल पॉइंटिंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स गॉड. कि हम लोग चारों तरफ से नेगेटिविटी के ऊपर सराउंडेड है, बट वी हैव टू टच अपॉन गॉड.
और उनका आंख इसमें नहीं दिखेगा, अगर पिक्चर क्लियर देखोगे तो उसमें आंख भी पिक्युलर वे में है, एक आंख का गोला नीचे जा रहा है, एक आई बॉल ऊपर जा रहा है, मीन्स वो कनेक्शन दिखा रहा है, मैन एंड गॉड कनेक्शन, ठीक है। बट सेंट जॉन द जीसस क्राइस्ट के पहले सेंट जॉन बैप्टिस्ट की एक स्टोरी है कि वो पूरा मतलब ये वो जो मैं बता रहा था जो डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे द जीसस कोड, उसमें सब पूरा एक्सप्लेन किया है कि एक राजा था, उसको हिरोडोटस भी बोलते हैं, या हिरोडोटस एक पहले भी उसके पहले भी राजा था, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो नाम है हीरोड एंटिपस नाम था राजा का, हाँ, हीरोड एंटिपस। और जो उसकी क्वीन थी उसका नाम था हिरोडियस, उसको कोई कोई लोग हेलेना भी बोलते, ठीक है। उसका क्या नाम था, हिरोडियस, मतलब हिरोड की वाइफ, उसको क्या बोलेंगे, हिरोडियस। कोई कोई लोग उसको हेलेना भी बोलते हैं, उसमें जो मैंने मूवी बताई उसमें उसका नाम हेलेना ही है। और ये जो दो हैं क्या है, एक जो 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 राजा बताया, ये क्या करता है, अपने सगे भाई को मार देता है और उसकी बीवी से शादी करता है। और ये जो है आपका कौन, हिरोडियस, ये वो उसकी वाइफ ही है, उसके भाई की वाइफ ही है, ठीक है। अभी ये सेंट जॉन द बैप्टिस्ट क्या रहता है, उस समय का एक प्रीचर रहता है, रिलीजियस प्रीचर रहता है। ये जो है लोगों को बोलता है कि ये जो राजा है उसने इलेजिटिमेटली अपने भाई को मारा है और इलेजिटिमेटली उसकी वाइफ से शादी किया है, सबको ये बोलता है। तो अभी ये जो क्वीन है, लेडी है, वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसको चाहिए कि वो सेंट जॉन द बैप्टिस्ट खत्म हो जाना चाहिए। अभी वो राजा का एक दिन बर्थडे रहता है और इनकी डॉटर है, उसका नाम है सलोमी, उसका नाम है सलोमी। वो उसमें बहुत बहुत अच्छा डांस करती है, मेस्मराइजिंग एक डांस करती है। और वो डांस से वो राजा बहुत प्रभावित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और बोलता है व्हाट एवर यू आस्क यू विल बी गिवन। सो एनी गेसेस कि वो क्या मांगती है, वो अपनी माँ से जाके पूछती है कि क्या मांगू मैं राजा से। एनी गेसेस कि वो क्या मांगती है, वो मांगती है, वो उसकी माँ उसको बोलती है कि सेंट जॉन द बैप्टिस्ट जो है उसका सीवियर्ड हेड, कटा हुआ सर एक थाली में लाके दो मुझे। और राजा एग्जैक्टली वही करता है, उसका कटा हुआ सर जो है वो थाली में लेके आता है, सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को मार डालते हैं। फिर आगे उनकी लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट होती है कि जैसे इसका एंड हुआ, ये पूरी जो फैमिली है ये आपका हिरोडियस और उसकी बेटी, सबका वैसे ही सर कट के एंड होता है। कोई शिप में जाता है, उनके ऊपर आइसबर्ग गिर जाता है, पूरी फैमिली का एंड वैसे हो जाता है। तो फिर लोगों का जो है ध्यान थोड़ा थोड़ा, वो जो रिलीजन, तब तक शायद उसको नाम नहीं था, उसको उसको नाम नहीं था, नाम क्रिश्चियनिटी किसके बाद रखा गया, जीसस क्राइस्ट के बाद नाम रखा गया। बट वो जो रिलीजन था वो सेंट जॉन द बैप्टिस्ट ने उसकी वो बुनियाद रखा था। और लोगों, ये जो घटना हुई, यहाँ से उस रिलीजन के बारे में लोगों में थोड़ा वो अवेयरनेस होने लगा और वो सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के पावर्स। फिर जीसस क्राइस्ट जो है वो सेंट जॉन का, जैसे बताया, बैप्टिज्म मिला उसको एंड ही वाज गिफ्टेड लाइक ही वाज सन ऑफ गॉड। ही यूज्ड टू डू मिरेकल्स, मैजिक, सिक को हील करना, ब्लाइंड को ये कर देना, रिवाइव कर देना, है ना। बहुत सारे आप सुने होंगे, जैसे जीसस क्राइस्ट का लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स थे। और एक हमारे इसमें क्रिया योग वाले हैं, है ना, जानते होंगे कोई कोई लोग, महाअवतार बाबा जी का जो लिनिएज है क्रिया योग, तो वो लोग जो मुख्य स्थान रखते हैं, जैसे वो महाअवतार बाबा जी को वर्शिप करते हैं, लॉर्ड कृष्णा को वर्शिप करते हैं, परमहंस योगानंदा को वर्शिप करते हैं, तो जीसस क्राइस्ट को भी वो लोग सेंटर में रखते हैं।
युक्तेश्वर महाराज को, ये उनके जो जो 5 या 6 हैं, उनको सब में जीसस क्राइस्ट को भी सेंटर, दे बिलीव दैट Jesus Christ was also a Kriya Yogi. But let's not get into that, but just a belief. But his life was full of miracles. ठीक है, अब ये कुछ नंबर कोड्स हैं, ये जो है बाइबल से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि बाइबल लैंग्वेज हिब्रू, बाइबल जो है हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई है, और हिब्रू में हर अल्फाबेट का कुछ नंबर कनेक्शन है। तो उसका बेस, एक लेक्चर में तो सब बताना मुश्किल होगा, बट कुछ नंबर्स जैसे जो देख सकते हैं, जैसे उसमें एक प्रिंसिपल था यूनियन, वन मतलब वन मतलब यूनिटी, सिंगल। जैसे उसमें कई बार बाइबल में आता है वन गॉड, वन फादर, वन वर्ल्ड, वन किंगडम, वन हेवन। ऐसे जो भी चीज सिंगल है उसके पीछे वन आता है। इससे हमको एक और चीज सीखने को मिलती है कि हम लोग इसमें वैदिक में क्या करेंगे, 9 नंबर है, 9 ग्रहों के साथ जोड़ देंगे, 8 नंबर शनि का नंबर है, 1 नंबर सूर्य का नंबर है। नंबर्स में बहुत कुछ राज छुपे हुए हैं भाई। हम सिर्फ 9 नंबर तक नंबर्स को सिमिट नहीं कर सकते, नंबर के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग ही मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो 1 नंबर जो है वो यूनिटी से जुड़ा हुआ है। नंबर 2 इज एसोसिएटेड विद यूनियन, जैसे फादर एंड द सन, होली स्पिरिट एंड गॉड, होली स्पिरिट एंड द सन, ऐसे 2 जन। इट इज ऑल्सो द नंबर ऑफ विटनेस, क्या है, फेथफुल विटनेस। 2 और 2 एक नंबर है इनके का, इससे बनता है 22 नंबर। तो 22 नंबर क्या दिखाता है, फेथफुल विटनेस। क्यों वो दिखाता है, क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था, पता है सबको जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था, तो 2 लोगों ने उनका क्रूसिफिक्शन विटनेस किया था। कौन थे वो लोग 2? एक थी जीसस क्राइस्ट की मदर, जिसको बोलते हैं मदर मैरी, और दूसरी थी उसकी डिसाइपल, जीसस क्राइस्ट की डिसाइपल, उसका नाम भी मैरी था, मैरी मैगडलेन। तो जो 22 नंबर है, ये कहीं पे भी आ गया, इट शोज फेथफुल विटनेस। मतलब प्रैक्टिकली वो किस नंबर से जुड़ा होगा, वो किस चीज से जुड़ा होगा, वो नंबर जो है लर्निंग, टीचिंग, प्रीचिंग, और उसको आप चाहिए तो नक्षत्र से भी कंबाइन कर सकते हो। 22वां नंबर, 22nd नक्षत्र कौन सा होता है? म्यूट अपना में, म्यूट में। श्रवण, श्रवण में भी हम क्या बोलते हैं, श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना। लिसनर। वो नॉलेज के आदान प्रदान से, इंफॉर्मेशन से, टीचिंग से, प्रीचिंग से, उपदेश देता है ना अपना ये वामन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु टू महाबली, उपदेश। अब मैं आपको हमेशा बताया 3 ग्रह श्रवण नक्षत्र में है। ये 22 नंबर अनगिनत बार मेरे जिंदगी में आया, अनगिनत बार। मैं अभी करंटली फ्लैट में रहता हूं, तो अभी मैं कैमरा हिलाऊंगा तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। किसी दिन मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा। फ्लैट का नंबर है 202, 22। मेरे गाड़ी अभी रिसेंटली मैंने 6 महीने पहले गाड़ी लिया, उसका नंबर है 1229, 22 बीच में आया, 22 नंबर। मैं किसी होटल में जाता हूँ रैंडमली, वहां पे 202, 22 ऐसे नंबर मिलते हैं, 2002, अनगिनत बार ऐसा हुआ है। सो 22 नंबर इज लर्निंग विद प्रीचिंग, लर्निंग, प्रीचिंग, अंडरस्टैंडिंग।
तो इसी से हम लोग रेमेडी भी क्रिएट कर सकते हैं या सजेस्टिव टूल्स भी निकाल सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन आए आपके पास जिसका लर्निंग टीचिंग रिलेटेड बिजनेस हो, टीचर है, एस्ट्रोलॉजर है, उनको बोलो आप फोन नंबर में, मोबाइल नंबर में 22 आना चाहिए कहीं भी। यहाँ पे कुछ सम टोटल वगैरह की कुछ नहीं बात कर रहे, 22 एज ए डिजिट वो आना चाहिए। ठीक है, ऐसे काफी सारे नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक 23 बताया था पिछले लेक्चर में कि डेथ से एसोसिएटेड है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट के मिनिस्ट्री में कितने डिसाइपल्स थे? उनके जो मिनिस्ट्री में कितने डिसाइपल्स थे? 12 डिसाइपल्स थे, 12 स्टूडेंट्स थे। डिसाइपल, स्टूडेंट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, डिसाइपल्स। तो 12 नंबर इज एसोसिएटेड विद गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, जहां भी ये नंबर 12 आएगा या 12 ऐसे आएगा, फोन नंबर में 1212 या 12, तो वहां पे जो है देर विल बी गुड गवर्नेंस। द रिलेशन बिटवीन द मास्टर एंड द सर्वेंट, और मास्टर एंड द स्टूडेंट, or the master and the co-workers, it will be very smooth, it will be very good. मैं कई बार अपने वीडियोस में एक पॉलिटिकल फैमिली की बात की है जो मेरे टाउन के हैं, मेरे से कनेक्टेड में है। उनका सब गाड़ियां हैं 1.5-2 करोड़ की, रेंज रोवर, डिफेंडर, है ना, आपका ये मर्सिडीज, दुनिया भर का गाड़ी, सब में एक उनका यूनिफॉर्म नंबर चलता है 1224। अब ये उन्होंने सोच समझ के नहीं लिया था, 20 साल 25 साल पहले से चलता है ये नंबर, बट इसमें क्या आ गया, 12 भी आ गया। गुड गवर्नेंस नंबर क्या बताया मैंने, 1224, 12 भी आ गया, बीच में 22 भी आ गया जो मैंने बताया, प्रीचिंग से जुड़ा हुआ है, टीचिंग प्रीचिंग से जुड़ा हुआ है। और 12 का ही हायर ऑक्टेट, 12 इंटू 2 क्या होता है, 24, 1224, है ना। वो फैमिली का जो फादर है 3 बार सिटिंग एमएलए है, रह चुका है, मदर 3 बार सिटिंग एमएलए रह चुकी है, वो बेटा है वो बहुत कुछ कर चुका है, तो ये नंबर गुड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ। ठीक है, अब जैसे एक पैराग्राफ बाइबल में टॉक करती है नंबर 9, नंबर 9 जो है इट इज एसोसिएटेड विद फ्रूट्स। उसमें बाइबल में है 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, कोई कोई उसको 11 फ्रूट्स भी लेता है, बट इट इज एक्चुअली 9 फ्रूट्स, 9 फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। यानी 9 का आंकड़ा किससे जुड़ा है बताइए, फ्रूट से जुड़ा है। मैं जो आत्मदर्शन किताब लिखता हूँ, जिन जिन ने मेरे से वो आत्मदर्शन किताब मंगवाई है ना, चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ। ये जो बुक है इसमें मैं ये इसको कैमरा कैच क्यों नहीं करता है। सो एवरीबडी नोज अबाउट आत्मदर्शन बुक, जिसमें 108 हैंड रिटन पॉइंट्स, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। उसमें मैं कुछ बहुत रेयर रेमेडीज भी लिखता हूँ। तो एक मेरा ये रेमेडी सब बुक में रहता है कि आप अपने डाइनिंग टेबल पे या डिस्प्ले टेबल पे 9 फ्रूट सजा के रखो, और आप देख सकते हैं कि प्रकृति में ये 9 का आंकड़ा फ्रूट से जुड़ा हुआ है। हम बोलते हैं नव रस, नव रस बोलते हैं ना, रस मतलब क्या, फ्रूट से नव रस, नवरत्न। ठीक है, अभी 2 दिन में नवरात्र शुरू होंगे, नवरात्र, नवरात्र में हम सबसे ज्यादा क्या चीज खाते हैं, फ्रूट, फ्रूट खा के आधा जो भारत सरवाइव करता है। ठीक है, सो 9 इज एसोसिएटेड विद फ्रूट्स। एक नंबर है 29, ये चाहिए, ये चाहिए, तो आप लोग अभी का भी गूगल भी कर सकते हो। बाइबल में एक पैराग्राफ है जो माउंटेन्स के बारे में बात करती है, माउंटेन्स के बारे में।
उसमें एक पैराग्राफ में माउंटेन जो वर्ड है वो 29 बार 24 टाइम्स 29 टाइम्स सॉरी 29 टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ है. Therefore 29 is associated with mountains and great heights. वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? Mount Everest. Mount Everest. Yes. Everest. If somebody wants to Google, they can do it right away. माउंट एवरेस्ट का जो ऑफिशियल हाइट है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका जो हाइट है, दैट इज 29,029 फीट एग्जैक्ट. अब वो क्या होता है, हर साल थोड़ा बर्फ पिघलता है, थोड़ा ज्यादा होता है, तो कभी वो 30 कर दे, 29,030 फीट, कभी 31 फीट कर देते हैं, बट एक एवरेज उसका कांस्टेंट जो चलता है 29,029 फीट. डजंट स्टॉप हियर. फर्स्ट पर्सन जो उस पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था उसका नाम क्या था? इसका आप नहीं Tenzing Norgay and Edmund, I एडमंड think. हिलरी. हाँ. So they climbed the Everest on 29th of May. अब मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था गिरीश. ठीक है, गिरीश का मतलब क्या होता है? गिरी मीन्स पर्वत. यस, इट इज एसोसिएटेड विद माउंटेन्स. उसका एक कॉमन नंबर चलता था, 20 साल पुराना नंबर, वीआईपी नंबर. लास्ट में आता था 5 बार 2, फिर 9, लास्ट में 29. और वो अपने बिल्डिंग में 13वें माले पे 13th फ्लोर पे रहता था. हाइट मीन्स वो माउंटेन से भी कनेक्टेड है, ग्रेट हाइट से भी कनेक्टेड है. अभी मैंने कार लिया था, जो बताया मैंने, उसमें भी बाय डिफॉल्ट आ गया 12. मैंने बताया ना 1229 मेरे को आया, तो पीछे 29 आ गया. कार मैंने जैसे ही लिया, हिल स्टेशन जाने का प्रोग्राम बन गया मेरा विद इन 1 वीक और 10 डेज. ओके. एंड ऐसे रैंडमली भी देख सकते हैं. अब जैसे मैंने एक पॉलिटिकल फैमिली बताया, जो उनके बच्चे हैं, उनके फिर उसमें वो 29 नंबर चलता है उनके गाड़ियों में. सो उनके बंगलो का नाम था पार्वती कॉटेज. पार्वती मीन्स व्हाट? पर्वत. गॉडेस ऑफ पर्वत की माउंटेन्स. बेटी. पर्वत. अभी वो बिल्डिंग, वो बंगलो अभी टूट के वहां पे बिल्डिंग बन रहा है, उसका नाम है हिल क्रेस्ट. हिल अगेन माउंटेन थीम. सर मैं बोलूं है? एक, हाँ बोलिए. हाँ, एक्चुअली मेरे पास भी एक 29 नंबर है, और वो ज्यादातर जब से आपने बोला तो मैंने भी मार्क किया हिल स्टेशन, चार धाम और हाई पीक पे. और यस हमारी यस बिल्डिंग यस. का नाम भी गोवर्धन है. गोवर्धन मीन्स व्हाट? गिरी पर्वत. गोवर्धन इज अ माउंटेन जो यस. कृष्ण भगवान ने उठाया था. यस. और आप देखेंगे किसी का 29 को बर्थडे है, उनके उनके क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड में इस तरीके के नाम भी होंगे, गिरीश, कैलाश, गिरिजा. या उनका घर, एक लेडी है फ्रॉम नवी मुंबई, उनका 29 का जन्म है और उसके घर से माउंटेन दिखता है. कुछ ना कुछ माउंटेन का कनेक्शन आएगा विद 29 नंबर. और आप दूसरी चीजें कंसिडर करके किसी को 29 भी दे सकते हैं टू रीच ग्रेट हाइट्स इन लाइफ. पर ये इससे ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. किसी से सलाह लेके समझ के कोई भी चीज करना चाहिए. खुद के मर्जी से कुछ भी करेंगे तो वो वर्क नहीं करता है ना. अभी नाउ इफ यू वांट, शोभित जी, यू कैन share that image on screen which I have told you. Okay, sir. I'll share.
Visible? The image is visible. No, your name is visible. No, Have you image opted is for also screen visible. share option? Yes, yes. Screen sharing only. Image is visible. Visible, huh? Yeah, it is visible. visible. I can see. Okay, okay. Yes, अच्छा sir, it मेरे is को visible. मेरे को somehow नहीं दिख रहा. It's okay. I have the image. What can you see on the screen? Image, actually. I can see only the image. I cannot see you. Now it came. Yeah. Now, kindly describe in detail what is the image about. Yeah, this looks like exactly like Jesus Christ, but different, like a different face. Okay. First of all, this is the image created by Leonardo da Vinci, the famous sculptor, artist, engineer, polymath, all in one. Okay. So he was all in one, as I told you. He was for some scientist. If they look at his painting, it will look like deep science in it. For for an evangelist, there will be some spiritual message in it. For an artist, there will be deep art in it. Okay. So yes, this image is of Jesus Christ, as you rightly said, and this image consists of lot of hidden secrets of the universe. And now this original painting is kept in the Museum of Abu Dhabi under the Prince Abu bin Salman. Okay, so it is sold for billions of dollars. And I don't remember the exact amount. If you want, I can Google it. Billions of dollars. Now, first of all, see that bowl. Okay, bowl. And in that, 3 stars are printed. Painted, I mean, 3 stars. Can you see that 3 star? It indicates to the Christian Trinity principle, Father, Son, and the Holy Spirit, as I told you. Okay. And usually Christians will not carry such a glass ball. Okay. But Buddhist people will carry. So he has kind of converged two things. Okay. And this 3 stars, they can also show the constellation of Orion. Many thinkers, many philosophers, they believe that Jesus Christ was the rebirth of some Egyptian god. Wait, I'll tell you who was the god. Egyptian civilization was before the Christian era, right? I'll get back to you with the facts. Many thinkers believe that Jesus Christ was the reincarnation of the Egyptian god. And you all know that there are pyramids in Giza, 3 pyramids in Giza, and आकाश में ये 3 स्टार्स हैं, ठीक है. वो पिरामिड का पोजीशन एग्जैक्टली वैसा है कि दे आर पॉइंटिंग एट दो 3 स्टार्स. ओरायन कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. और ये 3 स्टार्स हमको क्लियरली दिखते हैं अराउंड द टाइम ऑफ दिसंबर, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ होता है ना, 25 दिसंबर. तो उसने ये एक इंडिकेट किया है कि ये हो सकता है कि जीसस क्राइस्ट जो है एक जो इजिप्शियन गॉड है उसका री इनकारनेशन हो, ठीक है. और यू कैन सी उसके गाउन पे क्रॉस है. क्रॉस क्रॉस आपको पता है कि वो उनका होली सिंबल है. जीसस को क्रॉस पे क्रूसिफाई किया गया था. और उसका दूसरा हाथ देखेंगे तो वो एक हाथ आगे आ रहा है, वो उसमें वो इम्पैक्ट क्रिएट किया. उसका आर्ट एक स्पेशल था, उसको बोलते थे सोमाटो. 3D इफेक्ट देता था वो. तो आप ऐसे ध्यान से देखेंगे पेंटिंग को तो एक हाथ ऐसे आगे आ रहा है टू ब्लेस यू, ठीक है. और वैसे वो थोड़ा हाथ में सिर्फ ये है, फिंगर्स टिल्टेड है. मीन्स ही कैन शो दैट कनेक्शन बिटवीन फादर, मीन्स ही इज द सन. फादर एंड होली स्पिरिट के बीच में वो कनेक्शन है, द सन. और अगर उसको और जूम इन करेंगे, इसमें क्लियरली नहीं दिखेगा, जो क्रॉस है उसमें एक नंबर लिखा हुआ है विच इज 888, ठीक है. बाद में आप लोग जूम करके देख लेना, अगर अभी दिखता है तो देख लो, उसमें 888. तो जीसस का हिब्रू में नेम है जोशुआ. जीसस का नेम है जोशुआ. और उसका न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो है 888. 888. और जीसस वर्ड बाइबल में वो एग्जैक्टली 888 टाइम्स जो है वो यूज हुआ है.
तो 888 corresponds to Jesus Christ. This is the number that can give you healing, है ना. My father had one car, उसका नाम था स्टारलेट, टोयोटा स्टारलेट. आज से 20-25 साल पहले की बात है, और उसका नंबर हमारे पास आया था 8883. तो दिस नंबर इज एसोसिएटेड विद हीलिंग. वैसे ही कोई यंग लोग मेरे पास आते हैं, कोई लव प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ गिव 16 चॉकलेट्स और 16 flowers to your lover. Yeah, call them at 1616. Because number 16 is associated with love of God. It is associated with love. तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं. और 11 जो है वो chaotic नंबर है. 11 है ना. एक मैंने नंबर दिया है 153, वो फिशेस से जुड़ा हुआ है. मेरे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, एक ने बीच में और एक रेमेडी भी किया था, मैंने डाला था 1 साल या 2 साल पहले डाला था कि एक गोल्डन कलर का फिश का वॉलपेपर या इमेज रखो और वहां पे 153 रुपीज रखो. तो एक बलम सिंह करके है फ्रॉम दिल्ली, उसने उसको एक बड़ा बिग सम ऑफ मनी मिला. ही हैड सेंड द टेस्टिमोनी टू मी. ठीक है, तो ऐसे आई क्रिएट रेमेडीज ऑल्सो विद दिस. एंड 16 नंबर इज एसोसिएटेड विद लव. 911 मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. 911 क्या है? अमेरिका में हेल्पलाइन नंबर है. इट इज एसोसिएटेड विद केओस, डिस्ट्रक्शन. जो यूएस में टेररिस्ट अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पे, वो कभी हुआ था? 9/11 पे हुआ था. So that is the number associated with chaos and destruction. So कुछ नंबर्स हमको अवॉइड करने हैं और कुछ नंबर से हम रेमेडीज भी कर सकते हैं. 9 फ्रूट्स वाला बताया मैंने, 153 वाला बताया, 29 नंबर माउंटेन्स आप लोगों ने लाइव टेस्टिमोनी देखा, नीता जी का 29 नंबर कनेक्शन, और गोवर्धन, बिल्डिंग का नाम है गोवर्धन. Yes. ठीक है, तो ये सब चीजें होती है. नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में इसमें बताऊंगा, है ना. और देन हम लोग अपना फिर से डीएनए एस्ट्रोलॉजी, मैं देखता हूँ कि थोड़ा आप डीएनए से कभी कभी उब जाते हैं, तो बीच बीच में मैं थोड़ा ऐसे ये रेमेडीज या इंटरेस्टिंग अलग चीजें थोड़ा अलग लगा पढ़ के कैसे. सर ये लास्ट नंबर कौन सा बोला था आपने? 11 911 911 अमेरिका में 911. हेल्पलाइन नंबर है. कुछ भी इमरजेंसी होता है सिचुएशन, तो यू हैव टू कॉल एट 911. जैसे यहाँ पे इंडिया में 100 नंबर है ना पुलिस का, फायर ब्रिगेड का कुछ नंबर है, वैसे वहां पे कुछ भी इमरजेंसी होता है, यू हैव टू कॉल 911. तो 911 को कब कॉल करते हैं? जब कुछ गलत होता है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होता है. तो टेररिस्ट अटैक जो हुआ था, है ना, वो कब हुआ था? कौन सी डेट को हुआ था? 9/11 को हुआ. 9 ओके. नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा. एक नंबर है 179, वो जो लंदन की क्वीन है उसके मुकुट पे वो 179 नंबर लिखा हुआ है. वो पावर और प्रोमिनेंस से जुड़ा हुआ नंबर है. तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं. 888 बताया, जीसस क्राइस्ट से जुड़ा हुआ है. 1212 जो है गुड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है ना. नेक्स्ट टाइम मैं आपको 153 नंबर के बारे में थोड़ा और डिटेल जानकारी दूंगा. फिशेस का जो कनेक्शन है वो बताऊंगा, और वो उसका रेमेडी भी बताऊंगा, और वी विल गेट बैक टू डीएनए एस्ट्रोलॉजी. ठीक है, इसमें आपने कुछ वो डाउट बैग है डालने थे ना, होमवर्क का डालो ना प्लीज. क्या? आपने बोला था ना मैं होमवर्क दूंगा. होमवर्क जो कल जो आपने पढ़ा है वो पढ़ लो बस. होमवर्क क्या, बच्चे थोड़ी हो आप लोग. जो जो पढ़ा है वो पढ़ लो. ठीक. सर 11 का बताना है एक बार दोबारा. ऐसे कनेक्शंस 11. ढूंढो कि नंबर का, नक्षत्र का क्या क्या कनेक्शन है. सर एक बार 11 व्हाट का डिड यू बताओ. से? 11. 11. हाँ हाँ, 11 नंबर इज एसोसिएटेड विद केओस. ठीक है, मैं एक पढ़ता हूँ. Number 11 has been a major progressive revelation to me through the years. It is very much connected to the revelation of the number 9 and also has 2 meanings. When God is speaking something positive using the number 11, he likes to recognize victorious attributes of people. हर नंबर का इसमें भी पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है. तो 11 नंबर जो है विक्ट्री से जुड़ा हुआ है. ठीक है,
He will stamp the number 11 on it. The number is associated with mighty deeds. जैसे एक वेटरन्स डे होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, वेटरन्स डे मनाया जाता है. इट इज द डे वी सेलिब्रेट आवर हीरोज हु हैव बैटल्ड फॉर अस इन द यूनाइटेड स्टेट्स. वो 11/11 को मनाया जाता है. World War I ended in 11th hour of the 11th day of the 11th month. वर्ल्ड वॉर तब हुई थी. ठीक है. और उसका नेगेटिव साइड में है कि वो केओस से जुड़ा हुआ है. केओस, डिस्ट्रक्शन, है ना. जैसे डिसऑर्डर, डिस्ट्रक्शन. हमारे वैदिक में हम रुद्र को क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन. Yeah. ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द प्रिजर्वर, रुद्रा इज द डिस्ट्रॉयर. तो रुद्र को हम क्या बोलते हैं? कितने फॉर्म्स है रुद्र के? एकादश रुद्र, 11 टाइप्स ऑफ रुद्र. डिस्ट्रक्शन थीम से जुड़ा हुआ है. सो दैट कनेक्शन हैपेंस. ठीक है. सो पॉजिटिव साइड्स में उसका विक्ट्री है, नेगेटिव साइड में डिस्ट्रक्शन है. डिसऑर्डर और डिस्ट्रक्शन. 11 नंबर. 16 नंबर इज एसोसिएटेड विद लव. जैसे कोई भी नए कपल्स जो होते हैं वो लव के एज में, या जैसे फॉर यंग गर्ल कोई यंग एज में आती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्वीट 16. स्वीट 16 बोलते हैं ना. या जैसे ये हमारे इसमें हिंदू में बोलते हैं जैसे 16 श्रृंगार, मीन्स डेकोरेशन या लव से जुड़ा हुआ वो 16 श्रृंगार. तो 16 नंबर्स एसोसिएटेड विद लव, लव ऑफ गॉड. ठीक है. बहुत सारे नंबर्स हैं. एक मैंने शुरू में पहले ही बोला कि एक वीडियो में बताना मुश्किल होगा. जैसे 7 नंबर जो है वो रिवर ओशन से जुड़ा हुआ है. हम बोलते हैं ना 7 समुद्र, 7 ओशन. Sir, this number 13, no? In UK and US, generally they skip the door number 13 and also floor number 13. Yes. They consider is a bad sign. But why is that Yes, so? yes. Like 13 number. Yes. 666 is demonic number. It is a number of Satan. It is the number of bloodshed, blood and flesh. 666. ठीक है. we'll get back with more such numbers, 2 or 3 numbers. 153 नंबर के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम. वो फिशेस से जुड़ा हुआ नंबर है, फिशेस से. तो मेरा एक रेमेडी चलता है जिसके आप या तो पैसा ये फिश का वॉलपेपर रखो और 153 ये करो, पैसा उधर रखो 153 रुपीज. या जब चंद्रमा मीन राशि से पास हो, बिकॉज मीन राशि इज व्हाट? फिशेस. Fish. तो कहीं किसी लेक या पॉन्ड में चले जाओ वेयर यू कैन फीड फिशेस आइदर ब्रेड क्रम्स, और जो कुरमुरे आते हैं, कुरमुरे भेल में जो डलते, गिन के 153 पीसेस. ठीक है. तो हमारा ये वीडियोस वगैरह लेक्चर्स काफी लोग देख रहे हैं. एक छोटा सा मैं एक वो बोल देता हूँ कि आप जो भी सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहते हो या सीखना चाहते हो डीएनए एस्ट्रोलॉजी का, मैं फ्रेश बैच डीएनए एस्ट्रोलॉजी का मिड अक्टूबर से शुरू करने का प्लान कर रहा हूँ. ओके. एंड सून आई विल बी अपीयरिंग इन फ्यू ऑफ द मेजर पॉडकास्ट. ओके. सो आप लोग उसको लव और सपोर्ट देना. और जो भी डीएनए एस्ट्रोलॉजी और लोग सीखना चाहते हैं, मैं स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट. कोई ऐसा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ कि मींस एक वन टाइम फीस आई विल चार्ज, है ना. और कंटिन्यूसली इट विल बी इंटरैक्टिव सेशन एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेटिव डे और एवरी ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक में कुछ एक वीडियो के जरिए उस ग्रुप में, मींस दैट विल बी वेरी एक्सक्लूसिव फॉर दैट ग्रुप ओनली. वो जो वीडियोस हैं या वो कहीं भी आपको यूट्यूब वगैरह पे नहीं मिलेगा. वो जो उसमें एनरोल करेंगे उस लोग के लिए रहेगा वो. दैट विल बी इन द ग्रुप. एंड once in a week we will conduct live sessions where you can ask your doubts or queries, है ना.
अपना चार्ट वगैरह देख सकते हैं उसमें। तो वो मैं जल्दी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सो इफ पीपल आर इंटरेस्टेड दे कैन जॉइन अस, and if you want to get your Atma Darshan book or good quality gemstones, you can connect at Maharshi Astrological Center. ठीक है। अभी के लेक्चर में कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, else we'll wind up. है कुछ डाउट? नहीं सर, ठीक डाउट है। नहीं है। लेक्चर वाज वेरी इंटरेस्टिंग और कुछ डिफरेंट टॉपिक था, अच्छा लगा सुन के। ओके ओके मैंने भी लिया। चलो, सर then see you ट्रैवलिंग के लिए next. भी नंबर्स बताना ना मैम, ट्रैवलिंग के लिए कोई अच्छे ये से। इसमें ऐसा हर चीज के लिए नंबर नहीं है, जो उसका इवेंजेलिकल थियोरी से है ना, जैसे 22 इज लर्निंग है ना, 12 इज या गुड गवर्नेंस, वैसा। ओके सर, अच्छा रहा। ठीक है। ये आपने नेक्स्ट पहले भी डाला वीक, हुआ था। हाँ नेक्स्ट वीक का भी मैं बताऊंगा। आई थिंक आई विल बी ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। विल कंटिन्यू ड्यूरिंग दैट टाइम। नेक्स्ट वीक में हमको विल हैव पब्लिक हॉलीडेज ऑल्सो, दशहरा नवरात्रि का रहेगा, तो उसमें अगर फ्री रहेंगे सब तो हम वी कैन कनेक्ट दैट टाइम ऑल्सो। ओके सर, ठीक है। हैव अ नाइस टाइम ऑल ऑफ यू, टेक केयर। थैंक यू। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि।